Hello students, good morning. Class 7th, second chapter fractions and decimals, exercise 2L in continuation, question number 4. In question number first to 3 in last video we discussed the conversion of higher quantity to lower quantity and lower quantity to higher quantity. In question number 4, we have to convert some quantity from lower to higher and some from higher to lower. Whenever we have to convert any higher quantity to lower, then we always multiply, and if lower to higher, then we always divide. So question number first, 4000 gram we have to convert into 4 kilogram. So we know that 1000 gram is equals to 1 kilogram. So if we divide 4000, because this is the lower quantity and this is the higher quantity, so if we divide by 1000 gram, then it will be converted to 4 kilogram. Similarly, 1800 gram ko if we divide by 1000, then 1.8 kilogram. So always remember, smaller to higher we have to divide and higher to lower we have to multiply. See, 46 gram if we divide by 1000, then decimal 046 kilogram. Similarly, 729 milligram ko we have to convert into gram. So we know that 1000 milligram is equals to 1 gram. Okay. So अगर मैं इसको 1000 से divide करता हूँ तो it will be 0.729 gram. Then 700 milligram if divided by 1000, then 0.7 gram. Similarly, 67 milligram will be equals to 67 upon 1000, that is decimal 067 gram. 8 milligram if divided by 1000, then decimal 008 gram. And 9 gram will be if divided by 1000, then decimal 009 kilogram. Because 1000 gram is equals to 1 kilogram. Then last 2 centigram is equals to 20 milligram, because 1 centigram is equals to 10 milligram. So these some basic units you have to learn first, and then you can convert higher to lower, multiply, and lower to higher, divide. These two concepts you have to always remember. Then question number 5, 4 hectogram equals to how many grams? So 1 hectogram is equals to 100 gram. So 400 hectogram will be equals to 400 gram. 1.9 kilometer will be equals to 19,000. 1.9 kilometer, 19,000 decameter. Similarly, 8.3 decagram will be 880 decagram. Okay, 75 decameter. 75 decameter. 1 decameter is equals to 100 kilometer. So it will be equals to 100 से divide करेंगे 0.75 kilometer. Then 4 decagram will be 400 milligram, and then 300 kilogram, because we know 100 kilogram, 100 किलो को 100 किलो इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है. सो 300 किलोग्राम विल बी इक्वल्स टू 3 क्विंटल. So in short, 1 kilogram, if you have to convert in meter, then 1 kilometer. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 kilometer is equals to 100 decameter. 1 kilometer is equals to 10 hectometer. So higher then lower and then lower. So 1 kilogram, किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है 10 हेक्टोमीटर. 1 किलोमीटर को अगर डेकामीटर में कन्वर्ट करना 100 डेकामीटर. एंड 1 किलोमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना, देन 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर.
Similarly, 1 decagram is equals to 100 milligram. So these basic 4 quantity you have to learn. Now question number 5, some quantities in right and left given, and we have to compare first, and then we have to put the symbol इक्वलिटी और ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5000 मिलीमीटर और एक साइड में दे रखा 5 मीटर। देखो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। तो 5 मीटर को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 मिलीमीटर। तो यहाँ क्या है, इक्वलिटी का सिंबल है। यहाँ सीधा दिख रहा है ये 3.8 किलोग्राम है, ये 400 ग्राम है। तो 3.8 किलोग्राम ज्यादा है तो अपन ग्रेटर देन का सिंबल यूज ले लेंगे। ये 5 मिलीग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, लेस देन 5 मिलीग्राम इज लेस देन 1 किलोग्राम। ऐसे ही ये 3 ग्राम है और ये 30,000 मिलीग्राम है। तो 30,000 मिलीग्राम जो है वो 3 ग्राम से ज्यादा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बी 30 ग्राम। तो 3 ग्राम तो 30 ग्राम से छोटा होता है। सो 3 ग्राम लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 30 ग्राम। देन 0.0087 जो मीटर है वो 0.87 मिलीमीटर के बराबर होगा, बिकॉज 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर। एंड देन 0.2 किलोमीटर जो है वो 200 मिलीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा, सो ग्रेटर देन। सो दीज आर द बेसिक क्वांटिटी which generally we use in our daily life to measure the quantity. So I will suggest you to learn this exercise to understand these concepts, because if these are not in your daily life practice, then one day you will remember and another day you will not able to remember. So whenever you have to convert any higher quantity to lower, then multiply, and if lower to higher, then divide by 10 or 100 or 1000 as per the unit. So first you have to learn the various unit for the measurement, for the weighing, for the length, and use in daily life. Hello students, good morning. Fractions and decimal class 7th. Next exercise is second M. In this exercise especially we will discuss the problem based on daily life situation. So let us see question number first. Question number first is, find in centimeter the height of a pile of 15 books if each is 2 centimeter and 3 mm thick. देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स हैं, बुक्स इक्वल्स टू 15, एंड हाइट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू 2 centimeter and 3 mm, that is 2.3 centimeter. So height of pile of 15 books will be, एक बुक की जो हाइट है इतने सेंटीमीटर, तो 15 बुक का क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 2.3 सेंटीमीटर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 34.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज a pile of 160 seat, number of seats कितनी दे रखी है, number of seats equals to 160, and total height is equals to 6.08 centimeter. Find in mm the thickness of sheet. So अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करता हूँ then it will be equals to 60.8 mm. Okay,
now how much height of one seat or thickness of one seat। वन सीट का मतलब देखो 160 सीट की जो हाइट है, अगर एक सीट के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे अगर अपन मेजर करें, लेट अस सपोज ये आपकी फर्स्ट सीट है, इसके ऊपर कोई दूसरी सीट रखी, फिर इसके ऊपर कोई तीसरी सीट रखी, फिर इस पे फोर्थ, तो ये जो टोटल हाइट है वो थी इतनी 6.0 सेंटीमीटर। इसको अपन मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 किसके होता है, मिलीमीटर के बराबर। तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 मिलीमीटर हो गया, और 6.8 मिलीमीटर जो है 160 सीट की थिकनेस है। तो एक सीट की थिकनेस कितनी होगी, 60.08 अपॉन 160। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1600। अब इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो एक सीट का जो थिकनेस आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट 0.38 mm। So this is question number second. Then question number third. Third question, how many pieces of a tape of 6 centimeter long can be cut from a length of 1 meter and 5 centimeter? एक कोई टेप है, टोटल लेंथ ऑफ length of tape is equals to 1 meter and 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो टोटल हो गया 105 सेंटीमीटर। अब 105 सेंटीमीटर की जो टेप है उसके अपने को 6 सेंटीमीटर के पीस करने हैं। तो नंबर ऑफ pieces of 6 centimeter long will be equal to 105 upon 6, that equals to 105 upon 6 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 17.5 सेंटीमीटर का टोटल पीस है। 17 पीस कंप्लीट होंगे, 17 पीसेस प्लस 3.5 सेंटीमीटर आपका रिमेनिंग रहेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, रीड आउट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हाउ मेनी जार ईच होल्डिंग वॉल्यूम ऑफ 1 जार। एक जार में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1.75 किलोग्राम जेम है एक जार में। जेम या वॉल्यूम यू भी लिख सकते हैं, जेम इन 1 जार, जेम इन 1 जार। एक जार में कितना जेम है, 1.75 किलोग्राम, ठीक है। एंड it can be filled from vessels containing 100 किलोग्राम जेम। और जो कंटेनर है, कंटेनर कंटेन टोटल जेम कितना है, 100 किलोग्राम जेम है। 100 किलोग्राम जेम को अपने को ऐसे जार है जिनका वेट है 1.75 ईच है। तो अगर 100 किलोग्राम जेम को 1.7 किलोग्राम के जार में अगर मुझे फिल करना है तो टोटल जार कितने रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ जार विल बी इक्वल्स टू 100 किलोग्राम को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1.75 से। यहां से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10,000 अपॉन 175, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 57 जार बचेगा, 57 जार और 1 ग्राम बच जाएगा, 1 ग्राम। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
देन क्वेश्चन नंबर 5, एक रेसिंग कार है जो 425 मीटर कवर करती है 10 सेकेंड में। देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 425 मीटर। एक कार जो 10 सेकेंड में 425 मीटर जाती है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी जाएगी 425 अपॉन 10 मीटर, दैट इज 42.5 मीटर। ओके, तो वो 1 घंटे में कितनी जाएगी? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60, तो 42.5 इंटू 3600, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इतने मीटर क्या हो जाएगी, कवर कर लेगी। तो 42.5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 153,000 मीटर। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 30 कट जाएगा, इसका मतलब 153 किलोमीटर चली जाएगी वो कितने में? 1 घंटे में। दैट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है कि एक फ्लास्क है, उसका वेट, फ्लास्क वेट ऑफ फ्लास्क, एक फ्लास्क है, खाली फ्लास्क जो लैब में जनरली यूज होते हैं सॉल्यूशंस लेने के लिए। वेट ऑफ फ्लास्क, वेट ऑफ फ्लास्क, और फ्लास्क कौन सा? एम्प्टी। कौन सा है? एम्प्टी, खाली है, अभी उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। उसका वेट है 64.27 ग्राम। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर यही फ्लास्क फुल ऑफ वाटर है, अगर वाटर से भरा हुआ है, तो पानी और फ्लास्क का भी वेट होता है। पानी भर के फ्लास्क को अगर अपन मेजर करें तो वेट ऑफ फ्लास्क विथ वाटर, विथ फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, तो उसका वेट दे रखा है अपने को कितना? 150.35 ग्राम, 150.35 ग्राम है। अब देखो एम्प्टी फ्लास्क का वेट कितना है? इतना, और पानी से ही कितना है, तो ओनली पानी का वेट कितना होगा? सो वेट ऑफ वाटर, फ्लास्क में पानी का कितना? तो 150 माइनस 150.35 माइनस 64.27, अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये बचेगा लगभग 86.08 ग्राम किसका वेट है? वाटर का। ये फुल ऑफ वाटर का, तो हाफ वाटर का देखो, वाटर और वेट ऑफ वाटर किसमें? इन फुल ऑफ, जो पूरा फ्लास्क भरा हुआ था, तो हाफ कितना होगा? नाउ वेट ऑफ वाटर इन हाफ फ्लास्क, अगर पानी, पूरा पानी भरा हुआ फ्लास्क में तो इतना पानी है, अगर आधा भरा हो तो इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ फ्लास्क विल बी 86.08 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना होगा? 43.04 ग्राम। ओके, अब 43.04 ग्राम किसका वेट हो गया? हाफ फ्लास्क का। अब हाफ पानी भरा हुआ, इतना पानी का हाफ, अगर फ्लास्क पानी भरा हुआ तो पानी इतना। अब वापस हाफ पानी भर के फ्लास्क को ऐड करूं तो क्या होगा? फ्लास्क, या यूं लिखेंगे वेट ऑफ फ्लास्क विथ हाफ वाटर, अगर वो आधा पानी से भरा हुआ तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 43.04 प्लस 64.27 ग्राम। सो टोटल आपके पास आएगा 107.31 ग्राम टोटल।
फिर से समझ ले, एक फ्लास्क है, खाली फ्लास्क का वेट इतना है, फ्लास्क फुल ऑफ वाटर है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो फ्लास्क और पानी का वेट इतना है। देखिए केवल पानी का वेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल में से फ्लास्क के वेट को घटा देंगे, तो ये आया उस फ्लास्क में, पूरा भरे हुए फ्लास्क में केवल वाटर इतना है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका आधा हो गया, मतलब आधा फ्लास्क भरूं तो पानी कितना होगा, इतना। अब मैं फ्लास्क को हाफ ऑफ वाटर भर करके अगर वेट करता हूं तो फ्लास्क का वेट तो इतना था और इतना पानी है, तो 43.04 प्लस 64.27 ग्राम करेंगे तो 107.31 ग्राम। सो प्लीज पॉज द वीडियो नाउ। क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, जहां नहीं समझ में आता आप पूछे। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ और वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ये देखिए एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड पर ट्रायंगल बना हुआ, मतलब ये जो साइड है ये ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए कॉमन है। अगर ट्रायंगल की साइड 15 mm है, इसका मतलब ये साइड भी 15 mm हुई, क्योंकि ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है, ये भी 15 mm हुई, और स्क्वायर है इसलिए हर साइड स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 15 mm, तो ये भी 15 mm और ये भी 15 mm। अब अगर मुझे क्या दे रखा है, गिवन क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें, ट्रायंगल ABC and square BCDE. Here triangle ABC is an equilateral. क्या है, इक्विलैटरल है। Triangle ABC is equilateral with common side BC of square BCDE। ओके, ये चीज अपने को दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा, 15 mm। ओके, सो स्क्वायर की साइड भी क्या हो जाएगी, इंप्लाइज दैट साइड ऑफ स्क्वायर ऑल्सो 15 mm। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर निकालना तीसरी स्टेप में, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बराबर देखो यहीं से काउंट करो, ED प्लस DC प्लस CA प्लस AB प्लस BE। पेरीमीटर यहां से यहां, यहां, यहां और यहां। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, उस पेरीमीटर में ये साइड भी ऐड करना, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 साइड है, तो 5 × 15 mm दैट इज इक्वल्स 15 × 5 75 mm, और 10 mm बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पॉज द वीडियो नोट डाउन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीसरी क्लास के लेवल का है। पेरीमीटर का मतलब जानते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर का मतलब उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा ग्राउंड बना हुआ है और एक खिलाड़ी को कहे कि E पॉइंट से दौड़ना है, D पर, C पर, A पर, B पर होकर वापस E पे आना है, तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा ना, इधर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी जो यहाँ से जाकर यहाँ जाके चले फिर सेकंड बार में यहाँ होकर आएगा, है ना। वो दौड़ेगा कहाँ पे दौड़ेगा, E to D, D to C, C to A, A to B and B to E। दिस इज द पेरीमीटर। वो तो केवल आपको समझने के लिए दिया कि कॉमन साइड है ये, और ये साइड ये फिगर स्क्वायर है और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल, तो तीनों साइडें बराबर होगी, तो ये साइड भी 15 mm होगी, ये भी स्क्वायर की साइड है, तो बाकी रिमेनिंग भी 15 mm। सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 क्वेश्चन और करने हैं।
फिर अपन अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पढ़ाई करते रहे, हाफ ईयरली बहुत पास में आ गई तुम्हारी, मजे मारते रहोगे, कोविड में कुछ समझ में नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी का डायमीटर, तेरी की डायमीटर, पृथ्वी का, ट्रायंगल का डायमीटर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ट्रायंगल का डायमीटर होता है, अरे डायमीटर सर्कल का होता है हर चीज में। हाँ, दिस इज द अर्थ, और डायमीटर का मतलब ये पृथ्वी, इधर मान लो ऑस्ट्रेलिया और इधर साउथ अमेरिका, यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी, इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब रेडियस का दुगुना, कितना देर का है? 1,27,56,000 मीटर। इतना बड़ा फीता है तुम्हारे पास नापने के लिए? 1,27,56,000 मीटर पृथ्वी का डायमीटर, मतलब इस कोने से लेकर के उस कोने तक, बिल्कुल पृथ्वी का अगर सेंटर पता हो और इक्वेटर पे आप दौड़ लगाओ तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 1,27,56,000 मीटर है। अब क्या कह रहा है? ए न्यू प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड हुज डायमीटर इज 5/86 ऑफ द डायमीटर। एक कोई दूसरा प्लैनेट है, दूसरा यहाँ कोई प्लैनेट है, प्लैनेट तो जानते हो ना, सौरमंडल में बहुत सारे प्लैनेट है। अब एक दूसरा प्लैनेट साइंटिस्ट ने खोजा, इसका जो डायमीटर है वो तुम्हें पता नहीं है। किसका डायमीटर? इसका डायमीटर जो है वो 5/86 ऑफ अर्थ डायमीटर। ठीक है, मतलब वेरी सिंपल, अपने को 5/86 निकालना है किसका? अर्थ के डायमीटर का। सो डायमीटर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में डायमीटर को डी लिख दे या पूरा लिखे, डायमीटर ऑफ न्यू प्लैनेट। न्यू प्लैनेट का डायमीटर कितना होगा? 586 ऑफ 1,27,56,000 मीटर। ठीक है, तो 5/86 का मतलब क्या होता है? सिंपल 5/86 इंटू 1,27,56,000 मीटर। मल्टीप्लाई करो इसको और 86 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा डायरेक्ट 741,627.9069 मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये 1000 से जैसे ही डिवाइड हुआ और ये मीटर की जगह किलोमीटर आ गया। तो ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेस लेफ्ट में खिसक जाएगी। अपन लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा ना, किसी भी नंबर को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर वो राइट में डिस्प्लेसमेंट होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 741.62799069 किलोमीटर, ये दूसरे प्लेनेट का। तो बहुत सिंपल है, अगर किसी फ्रैक्शन का पर्टिकुलर पार्ट निकालना तो सिंपल 5/86 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, फीता लेके डायमीटर नापने में चले जाना पृथ्वी का। बहुत से बच्चे सोचते हैं बैठे बैठे, इतनी बड़ी पृथ्वी का डायमीटर किसने नापा होगा? हैं, इतना बड़ा फीता होता है क्या? अरे तुम्हें कैलकुलेट करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, अब देखो रविंद्र है, जो एक रविंद्र, देखो ये रविंद्र है, ठीक है, ये रविंद्र है, हैं, इसके पाँव भी बना देते हैं रविंद्र के। ठीक है, ये रविंद्र है, इसकी टोटल हाइट है 144 सेंटीमीटर। हाँ, रविंद्र की, कौन है ये? रविंद्र। और इसका कोई ब्रदर है जिसकी हाइट हमें पता ही नहीं है। ये इसका ब्रदर है, इसकी हाइट हमें पता नहीं, इसकी हाइट है माना कि x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रदर की हाइट का 9/10 जो है वो रविंद्र के इक्वल है।
ब्रदर की हाइट कितनी ली, x, उसका 9/10 जो है वो किसके बराबर है, रविंद्र की हाइट। रविंद्र की हाइट कितनी है, 144। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो न्यूमरेटर में 144 × 10 और ये 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ गया, देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा ये, देखो 16, 9 जा कितना होता है 144 होता है, तो 16 × 10 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। रविंद्र के जो ब्रदर है वो इतना सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, रविंद्र के ब्रदर की हाइट का 9/10 रविंद्र की हाइट के बराबर है। रविंद्र के ब्रदर की हाइट तो अपन ने मानी है, क्या मानी, लेट द हाइट ऑफ रविंद्र ब्रदर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और एज पर कंडीशन, कंडीशन अपने को क्या दे रखी, कंडीशन ये दे रखी कि रविंद्र के ब्रदर की हाइट का 9/10 रविंद्र की हाइट के बराबर, ये कंडीशन दे रखी है। तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको ऐसा फोटो नहीं बनाना, मैंने समझाने के लिए बनाया था। हाँ, रविंद्र का फोटो बनाने बैठ जाओगे परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाएगा। नाउ ये 9th क्वेश्चन था और ये 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि एक पब्लिक सीवेज लाइन है जो किसी रोड के अलोंग, ये रोड है आपका, ठीक है, इस पे आराम से गाड़ियां दौड़ रही है, ठीक है, ठीक है, ये हाईवे है, इसके अलोंग अपने को क्या करना है, इसके सारे अलोंग अपने को एक सीवेज लाइन डालनी है ना, जिसकी लेंथ कितनी है 80 राइट 1/2 मीटर। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, 80 × 2 160 + 1 161/2 मीटर लंबी लाइन डालनी है। द सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर ने कहा कि उसकी जो लेबर है वो एक दिन में 7.5 मीटर ही लाइन डालेगी, ठीक है। टोटल लेंथ इतनी है, टोटल लेंथ बराबर इतना, इन 1 डे वर्क कितना है 7.5 मीटर का। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा क्वेश्चन, इतनी लंबी पाइपलाइन डालनी है सीवियर के लिए और एक दिन में लेबर 7.5 मीटर लंबी ही डालती है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे 161/2 डिवाइडेड बाई 1/7.5 है, 7.5 मीटर एक दिन में। तो टोटल लेंथ इतनी है। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे 0 चला जाएगा, तो 1610/7 ये कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग, देखो 10 डेसिमल में 73 आएगा। तो देखो इतने दिन 10.73 मतलब आप डेसिमल के बाद डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट तो 11 डेज बोलेंगे, इसको डिवाइड तो कर लोगे ना। अरे 161 को सिंपल 15 से डिवाइड करना नहीं आता, 15 1 जा 15 हैं, ये कितना बचा 16 में से 15 1, ठीक है, भाग टूट गया 0 लगा दो, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 7 जा डेसिमल, हैं, समझ में आया। तो कितना आ गया, कितना आया, अरे 105, ये कितना बचेगा 5 डेसिमल लगा हुआ, फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ 0 आया, 15 3 जा 45, तो इस तरीके से है ना। सो 10.73 डेज का मतलब 11 डेज। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, share it and subscribe. Thank you.